Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Hello guys, how are you? Everyone is fine. So आजकल रेगुलरली मेरा वीडियोस नहीं आ रहा है ड्यू टू सम माय पर्सनल प्रॉब्लम्स. So I'm thinking to uh, I'm thinking to give you the regular videos from the next week. So for that I'm extremely sorry for my uh, irregularity in uploading my videos. Okay, and also today I'm going to give some more examples based on the calculations, based on the rules of oxidation numbers what we have discussed in our last videos. Particularly 3 to 4 examples we have discussed. Some more examples I am going to discuss today only. So what I have written in this, you can see that the complex ions, if it is carrying some charge. So if the complex ion, if it is carrying some charge, what about the complex ions? So this complex ion means that what? ये complex ion हम लोग क्या बोलते हैं generally? So some of the complex ion, if I want to write, then I can write like nitrate ion, then carbonate ion, CO3 dinegative. So these are the some particular complex ions which is carrying some charges. You can see it is carrying some charges. Here the charge is -1, here the charge is -2. So basically if we are dealing with this type of compounds that we call it as complex ions, so what will be the oxidation number? So here if you sum of the rule tells us that we have already discussed. So if the rules tells us that if the complex ion we are dealing with it and they are asking for the oxidation number, suppose they are asking to find the oxidation number of nitrogen and then carbon, suppose, and how will you find it? So sum of the oxidation number of all the atoms in this particular compound will be equal to the charge of this particular compound. Okay, so this is the rule which tells us that sum of all the atoms in the complex ion is equal to the what? Is equal to the sum of the oxidation number of all the atoms in this compound is equal to the charge on it. So it is -1, it is -2. So we are going to discuss some more examples related to complex ions. Okay, so it will be one by one. Okay, so our first example we'll choose from our we'll choose some compounds here and we'll try to discuss some examples based on the based on these rules. If the complex ion carrying some charge, so what will be the oxidation number of any particular element? Let us start. So here I'm writing the question here: calculate the oxidation number of one number, that is nitrogen in NO3 negative, that is called nitrate ion. Okay, this known as nitrate ion. Okay, so इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर? इट्स very easy. Okay, first of all you have to see that what type of element you are dealing with. So here the element is nitrogen and oxygen. So element, you can write element present, elements equal to elements are लिख सकते हो, that is nitrogen and oxygen. ठीक है, अभी इसमें हम लोग ने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया. अभी मुझे क्या निकालना है? यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. किसका निकालना है? नाइट्रोजन का निकालना है फ्रॉम द नाइट्रेट आयन. तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? सो इट्स वेरी इजी. मैंने कुछ दिन आगे भी बोला था, जिसको निकालना है यू हैव टू सपोज इट और यू हैव टू लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बी एनी वेरिएबल दैट वी हैव चूजन एज x. So you can write like this way: let the oxidation number, that is O dot n, let the oxidation number of nitrogen be x. ठीक है, मैंने नाइट्रोजन को कितना पकड़ लिया? x, क्योंकि मुझे निकालना है, मुझे मालूम नहीं है ये कितना हो सकता है. तो यहाँ पे मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इसका प्रॉब्लम को? तो यहाँ पे मैं ऊपर में करके दे रहा हूँ. ठीक है, सो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? इसको मैं आराम से कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? सॉरी, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ x प्लस O3
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट पैरोक्साइड सुपर ऑक्साइड। अगर ऐसा कुछ पैरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड होंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे, बट ये ना पैरोक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड है, कुछ भी तो नहीं है ये। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे, -2 होंगे। मतलब कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, दिस 3 इंटू -2। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कुछ देर आगे मैंने रूल्स बताया, इफ इट इज एन कॉम्प्लेक्स आयन then the oxidation number of all the atoms, sum of the oxidation number of all the atoms in this particular compound will be equal to the charge. So charge is what, -1। तो यह आराम से निकाल सकते हो, अभी x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। So how will you calculate this? x plus 3 into -2 means you can write plus and minus will be -6 equal to -1. So it will be x equal to -1 plus 6 implies x equal to +5. So here the oxidation number of nitrogen will be what? Here the oxidation number of nitrogen will be what? Therefore, oxidation number of nitrogen is +5. Clear? It's very easy one, na? So if it is in complex ion, then only the rule will be valid. Okay? Let us try some other examples. Let us explore some other examples. Okay? So other examples में मैं लेता हूँ कार्बोनेट आयन, ठीक है, CO3 डाइनेगेटिव। क्या किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। So it is again a complex ion because it is carrying some charges. Now how will you find out this compound? How will you find the oxidation number of carbon here? It's a very similar. So let, जिसको निकालना है उसको पकड़ लो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बी x. ओके, नाउ सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। सो हियर x प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होंगे, -2, दैट इज डाइवेलेंट इक्वल टू -2 implies x -2 6 equal to -2, that is x equal to -2। ट्रांसपोजिशन करने से ये माइनस को उस साइड में लेके गया तो क्या होगा, +6, that is +4। therefore oxidation number of carbon in CO3 dinegative is +4, right guys? So you can do it like this way. Okay, it's a very easy one. Let us try some more complex ions. Okay, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग NO3 नेगेटिव देखा, जस्ट कार्बन के जगह में नाइट्रोजन था, चार्ज -1 था, यहाँ पे चार्ज -2 है और नाइट्रोजन के जगह में क्या है, कार्बन है। बट अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, मैंगनेट आयन लेना चाहता हूँ, मैंगनेट आयन, ठीक है। इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, इट इज कमिंग फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ से तुमको इस कंपाउंड को तुमको क्या निकालना है, इस कंपाउंड का किसको निकालना है, मैंगानीज को निकालना है, ठीक है। और मैंगानीज का सिंबलिक क्या लिखते हैं हम लोग, Mn लिखते हैं। तो इसको निकालने के लिए बोला है तुमको यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है, मैंगानीज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, और मैंगानीज जो होते हैं Mn, it shows variable oxidation state because of d block element, or because d block element generally shows what, it shows variable oxidation states। तो इसलिए मैंगानीज जो होते हैं जनरली, इट कैन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो होते हैं जनरली +7 तक चले जाते हैं, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगानीज इज +7, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम +7 तक जाते हैं। सो वेरी मतलब हाँ, ओस्मियम एक कॉम्प्लेक्स है, ओस्मियम एक एलिमेंट है फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट, इट कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। यू विल गेट टू नो आफ्टरवर्ड्स हाउ इट इज पॉसिबल। Now in this case, what will be the oxidation number of manganese? So you have to suppose it, that is let the oxidation number of manganese be X। इसके बाद oxidation number of all the oxidation number of all the atoms in this particular
और कॉम्प्लेक्स आयंस विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। तो यहाँ पे माइनस सिंपल सिंगल नेगेटिव है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होंगे, -1 होंगे। मतलब x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से बोल सकते हो x माइनस 8 इक्वल टू -1, दैट इज x इक्वल टू +7। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंगनीज का कितना है, +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का। तो डी ब्लॉक जब पढ़ोगे इन क्लास 12, you will get to know some of the elements which can show variable oxidation state, +3, +4, +5, +3, +4, +5, +6. So these are some variable oxidation states. एक ही ऑक्सीडेशन में स्टेट में वो लोग फिक्स नहीं रहते। जैसे ग्रुप 1 का +1 ही होता है हर जगह में, जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा वहाँ पे भी +1, जो भी कंपाउंड either with the known metals, lithium chloride, lithium hydroxide, all having +1 charges, that is oxidation number of group 1 element is fixed, that is +1. Again, for coming to the group 2 element, again it will be fixed. But when you go on that particular metals, that is from group 3 to group 12, you will see that the elements can show variable oxidation states because of larger surface area generally. But I am not going to tell you now because I am just keeping it right now. We will discuss it more in detail in class 12. Okay, why they can show variable oxidation state. मैंने कुछ एक particular hint दिया कि they have maximum surface area. That is the reason only they can show variable oxidation states. We'll later on we'll discuss it. यहाँ पे मुझे निकालने के लिए दिया है, मैंने निकाल के तुम लोग को सामने निकाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, डाइक्रोमेट, ये कहाँ से आते हैं जनरली, इट इज कमिंग फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट से डाइक्रोमेट आयन भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, क्रोमियम का निकालने के लिए बोला है। सो पकड़ो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बी x, ठीक है। देयरफॉर 2 क्रोमियम, तो 2 इंटू x प्लस 7 ऑक्सीजन, दैट इज 7 इंटू -2 equal to -2, because this complex ion carrying charge what, -2, so equal to will be -2. So here you can find out easily the x value. So twice x minus 14 equal to -2, that is twice x equal to +12, that is x equal to +6. So here the chromium is carrying charges +6, that is oxidation number of chromium is +6. Next we'll discuss some more examples. अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है, you can discuss in my I have an Instagram, I have an WhatsApp, whatever you want, you can follow me on that particular social site and you can talk with me, okay, if any problem you have regarding the calculations, how you can calculate the oxidation number. Okay guys, मैं ज़्यादा टाइम आज बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मुद्दा पे आते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज वन फ्रॉम क्लास 11। बहुत सारा चैप्टर्स हम लोग को कवर करना है, टाइम बहुत कम है। अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है या मार्च में एग्ज़ाम होने का मार्च में एग्ज़ाम होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल वी कैन टेक द रिस्क, ओके। साथ ही साथ हम लोग को एग्ज़ाम भी देना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी रहेंगे, ठीक है। वैक्सीन्स निकलने के बाद ही सिचुएशंस बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, तब तुम लोग को एज यूजुअली जाना पड़ेगा स्कूल या कॉलेज में। तो हम लोग कुछ और एक एग्जांपल में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ClO4 नेगेटिव, ठीक है, जिसका हम लोग क्लोराइड आयन भी बोला जाता है, पार क्लोराइड आयन भी बोला जाता है, ClO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे क्या निकालने के लिए बोला है, क्लोरीन को निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सो इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज कैरिंग ए चार्ज -1। तो यहाँ पे निकालो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर of chlorine be x, okay, then x plus 4 into -2 equal to -1, so x minus 8 equal to -1, that is x equal to +7. So here chlorine is +7. Why it is +7? Since it is a group 17 element also, it is carrying a charge +7 because oxygen is more electronegative compared to chlorine. So that's why chlorine is having a positive charge and the oxygen is carrying a negative charge. If the two nonmetals combine, then it will be, the charges will be depend on the electronegativity difference.
So here the oxygen is more electronegative in comparison to the chlorine. So that's why chlorine is carrying a positive charge. Okay, and how we can find it? See, it is the way we can calculate the oxidation number of any complex ions. Let us move to the other examples. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को क्लियर होता रहे। कुछ टफ एक एग्जाम्पल लेते हैं। FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। आयरन हेक्सोसायनेटो, ठीक है, आयरन हेक्सोसायनेटे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जनरली फेरिक साइनाइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जनरली इस कंपाउंड से तुमको क्या निकालने के लिए बोला? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला। सपोज कैसे निकालोगे? सो पकड़ लो, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन बी एक्स, क्लियर। देयरफॉर x प्लस 6 और Cn का क्या होता है? जनरली साइनाइड आयन होते हैं, मतलब Cn नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो Cn नेगेटिव होते हैं, मतलब क्यों Cn नेगेटिव होते हैं? जनरली बिकॉज इट इज अ साइनाइड आयन, इसको बोला जाता है साइनाइड आयन, इसका नाम है साइनाइड आयन, मतलब Cn नेगेटिव। तो इस कंपाउंड का ये जनरली तुमको यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं लेना है कार्बन एंड नाइट्रोजन का अलग अलग से, ठीक है, तब तो ये जीरो हो जाएंगे। एलिमेंटल स्टेट में जब लोगे, जैसे एसिड हो या फिर तुम्हारा O2 हो या N2 हो, या अगर सोडियम मैग्नीशियम जो भी अगर एलिमेंटल स्टेट में हो या डायटोमिक स्टेट में हो, सिमिलर एटम्स, तो जनरली वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना जाता है? जीरो माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? जनरली इट इज कॉल्ड ए साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन में चार्ज कितना होता है? -1। तो इसमें ओवरऑल चार्ज कितना देंगे हम लोग को? -1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का कितना होंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 × -1 इक्वल टू चार्ज कितना है? -4। तो यहाँ पे x - 6 = -4, दैट इज x = -4 + 6, दैट इज x = +2। तो यहाँ पे आयरन का कितना होंगे? +2। और आयरन दो ऑक्सीडेशन में मिला जाता है, +2, बिकॉज इट इज ऑल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट। कभी कभार +2 में मिलेंगे, कभी कभार +3 में मिलेंगे। मतलब फेरिक ट्राइक्लोराइड भी होते हैं, FeCl3, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है फॉर डिटरमाइनिंग द फिनॉल। फिनॉल को फिनॉल है कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, उसके लिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये FeCl3 यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट न्यूट्रल, ठीक है। तो जनरली आयरन +2 में भी स्टेट में होता है, +3 स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन क्या स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने Cn को क्या लिया? Cn को हम लोग ने क्या लिया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn नेगेटिव आयन हाउ वी हैव टेकन? वी हैव टेकन एज -1। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ तो, ठीक है। ये सब कंपाउंड तुम लोग को देखने को मिलेंगे in class 12 when you study the D block element, okay. So no need to worry for that how it is coming, but for now only you have to see only those particular complex. This will gives you the better idea, okay. One more we will discuss, last one, that is H3P2O7 negative, ठीक है। H3P2O7 नेगेटिव, इस कंपाउंड को कैसे निकाल सकते हो? H3P2O7 नेगेटिव कंपाउंड का हम लोग कैसे निकालेंगे? और इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाइफॉस्फेट ट्राइहाइड्रोजन, ठीक है, एनायन भी बोल सकते हो। सो डाइफॉस्फेट ट्राइहाइड्रोजन एनायन भी बोल सकते हो, बिकॉज इट कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज. So how we can calculate the oxidation number of phosphorus? In this case, we have two atoms of phosphorus, ना, that is P2. दो एटम, phosphorus कितना एटम है? दो एटम, दो phosphorus एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 7 ऑक्सीजन एटम है. तो यहाँ से क्या निकालने के लिए बोला है? सिर्फ phosphorus का निकालने के लिए बोला है. तो निकालो, let the oxidation number of
phosphorus Bx, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सबका प्लस ऑफ करने के बाद इक्वल टू विल बी -1। सो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होते हैं, +1 देते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। फॉस्फोरस कितना है, 2 फॉस्फोरस। सो 1 फॉस्फोरस अगर x है तो 2 फॉस्फोरस कितना होंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे +3 प्लस 2x -14 इक्वल टू -1। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 2x वैल्यू का, तो 2x इक्वल टू -1 प्लस 14 -3, ठीक है। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, अगर एक ही लाइन में कर सकते हो तो एक ही लाइन में कर देना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2x इक्वल टू 14 -1 इट इज़ व्हाट +13 +13 -3 मीन्स दैट इज़ +10। सो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो जनरली x इक्वल टू +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का कितना हो रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो गाइस इट्स वेरी वेरी इजी वन, you don't have to confuse, you don't have to memorize anything, you just have to जो मैंने रूल्स पढ़ा है उस रूल्स को अच्छे से एक बार देखो, ठीक है। पीडीएफ फाइल बाद में मिल जाएंगे, टेंशन मत करो। एक ही बार मैं पीडीएफ फाइल डालना शुरू करूँगा तब डालते रहूँगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द एनी अननोन एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, यू कैन फॉर ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और फॉर ए कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। तो जस्ट रूल्स को याद रखना है। और इस कंपाउंड का नाम है डाइफॉस्फेट ट्राइहाइड्रोजन एनायन भी बोला जाता है, ठीक है गाइस। सो फॉर टुडे दिस मच, आई होप यू लाइक माय कंटेंट्स, मोर कंटेंट्स इज कमिंग सून, ओके। सो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, तुम लोग को डालता रहूँगा, ठीक है। ये मेरा ड्यूटी है, तुम लोग को मैं शिक्षा दूँ, और ये मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं तुम लोग को पढ़ा पा रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी ऑनर फॉर मी,